ہو جب فرقے 73 سامنے اور ایک چننا ہو، سمجھ میں کچھ نہیں آئے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے تو بریلی میں چلے آنا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سب سے پہلے میرے تمامی سنی بھائی، میرے احباب، میرے دوست، سب کو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری بدھائی، مبارکباد۔ جشن عید میلاد النبی، عیدوں کی عید، الحمدللہ یہ ایسی عید ہے کہ جس پر ساری عیدیں قربان۔ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ مہینہ دیکھنا نصیب ہوا، اور 12 ربیع الاول انشاءاللہ بہت دھوم دھام سے آقا کا میلاد منایا جائے گا۔ اپنے گھر میں ہمارے سنی بھائی ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی کرتے رہیں گے۔ خیر کیف، بات کلام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے اس بچی کے مابین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو بھی معاملات ہیں، جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے اس میں وہابی دیوبندی شیعہ رافضیوں کو آگ اس لیے لگی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس بچی کے ڈونیشن کے لیے ان لوگوں کو منع کیا ہوا ہے، اور جب ان کا کوئی بھی آدمی جب ہمیں پیسہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ہم نے اس کا پیسہ واپس کیا اور عوام کے بیچ میں بات کو رکھا ہے۔ اب چکر کیا ہے کہ ان کی تنظیموں میں جو ہمارے بھولے بھالے سنی بریلوی حضرات جڑ جاتے ہیں، وہ ان کو لات مار رہے ہیں کہ جب ہم ان کو وجہ بتا رہے ہیں پیسے نہ لینے کی تو ان کو لات مار رہے ہیں اور یہ اور چڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بد مذہب سے، جن کے دل کے اندر کینہ ہوتا ہے نا، جو ادھر کی ادھر کرتے ہیں، جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دل ایسے ہی ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے سنی بھائی، ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ جڑ کے کھڑے رہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، کبھی باطل اس کو کچل نہیں سکتا۔ چلیں بہرکیف، اسکینر آپ کو دیا جا رہا ہے، باقی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، دعا کی درخواست ہے۔ اور جو بھائی ہم سے ملاقات کرتے ہیں، جو بھائی ہم سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس مابین بہتر طریقے سے جانتے ہیں، مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم ان بد مذہبوں کے دلوں کو جلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو ایک ریکارڈنگ سنانا چاہوں گا، اور اس ریکارڈنگ کے ساتھ ایک تحریر دکھانا چاہوں گا کہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ ان مولائیوں نے، یہ نام نہاد جو مولائی کہتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے جب بنگلور کے مناظرے میں منہ کی کھائی، ان کے قاری احمد حسن اور ان کے جو مفتی جو گئے تھے، مفت کے مفتی، انہوں نے جب منہ کی کھائی تو انہوں نے ایک ایسا جال پھینکنے کی کوشش کی کہ جس کو ہم نے پکڑا، اور پکڑا ہی نہیں، ان کا منہ کچلا، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داری لے۔ اگر اس تحریر پر کسی رافضی کی ماں نے اس کو حلالی پیدا کیا ہے تو اس تحریر پر ذمہ داری لے کہ یہ میں نے لکھی ہے، لیکن یہ لیں گے نہیں، ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ چلیں بہرکیف آپ یہ پہلے تحریر دیکھ لیں اور یہ وائس سن لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مسلک کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جس میں یہ ناکام ہوئے، پھر بات آگے چلے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز دارالافتاء سوداگران، رضا نگر، بریلی شریف، یو پی الہند۔ وضاحت نامہ۔ یہ وضاحت نامہ جناب اسد رضا خان صاحب کا مولوی جامع اشرف کھمبات کے تعلق سے ہے، ضرور ملاحظہ کریں۔ میں جن حضرات کو اردو پڑھنا نہیں آتا انہیں پڑھ کے ہی سنا دیتا ہوں۔ خانوادہ رضویہ کے کچھ افراد جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کو غلط طریقے سے پیش کیا، حضور تاج الشریعہ کے مواقف پر عمل نہ کرتے ہوئے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی کے مواقف کو عام کیا، بیتے کچھ سالوں سے جامعہ نوریہ رضویہ باکر گنج بریلی شریف میں جس دستار بندی کے پروگرام کو عرس اعلیٰ حضرت کی صورت دی گئی ہے، اس میں شریک ہونے والے افراد
جو مسلک اعلیٰ حضرت نام نامی سے خود کو عوام اہل سنت میں مقبول کرانا چاہتے ہیں، جس میں مولانا جامی اشرف کھمبات گجرات نے امسال کئی غیر ذمہ دارانہ، غیر اخلاقی اور نازیبا جملوں کا استعمال کیا، اور ساتھ ہی حضور تاج الشریعہ کے نام کو بھی استعمال کیا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا موقف رافضیت، تفضیلیت کے ساتھ ساتھ ناسبیت اور خارجیت کے خلاف بھی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ہمارا کلی عقیدہ اور اعتماد ہے۔ جامعہ نوریہ رضویہ کے پروگرام کو عرس اعلیٰ حضرت کہہ کر مشہور کرنا بالکل غلط ہے، اور اس دستار بندی کے پروگرام میں مولانا جامی اشرف کا بیان عرس اعلیٰ حضرت میں دیا گیا بیان کہنا غلط اور قابل مذمت ہے۔ عوام اہل سنت اس غیر مستند بیان کو ہرگز عرس اعلیٰ حضرت کا بیان نہ سمجھے، چونکہ اعلیٰ حضرت میں اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر مستند بیان نہیں دیے جاتے۔ عوام اہل سنت ایسے بیان سننے اور اس میں جانے سے اجتناب کرے۔ فقیر محمد اسد رضا قادری۔ بہرحال آپ نے یہ آڈیو سن لیا کہ جو جامع مولائیت کے جنازے کی نکالنے کی بات کر رہا تھا، اسی جامع کھمبات کے جنازے کا سرٹیفکیٹ بریلی شریف سے آ گیا۔ اب آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ جامی اشرف کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکلے، اور بس یاد رہے ان سبھی حضرات کو کہ ساری کائنات سے ٹکر لے لینا مگر مولائیت سے، حسینیت سے کبھی ٹکر نہ لینا، کبھی ان سے الجھنا مت۔ اگر مولائیت سے الجھو گے تو تم خود ایسی گتی میں الجھ جاؤ گے کہ کبھی دوبارہ الجھنے کی تمنا ہی نہیں رہے گی۔ اب دیکھیے اس رافضی کی فوٹو آپ کو دکھ رہی ہوگی، اس کا نام ساجد ہے، اور یہ ایسا نامعقول انسان ہے کہ اپنے چینل پر بیٹھ کر کے فیک اسکین بنا کر کے کبھی تفسیر مدارک، کبھی تفسیر بیضاوی کا ایسا اسکین بناتا ہے کہ بھولے بھالے لوگ اس کو ڈھونڈ ہی نہیں پاتے، اور وہ اصل میں موجود ہی نہیں ہوتا ہے، اور اس کو اپنی ویڈیو میں دکھا کر کے عوام کی واہواہی لوٹتا ہے۔ اب دیکھیں اس نے یہ اسکین اور یہ وائس ہمارے ایک بھائی کو بھیجی، اور اس بھائی نے مجھ کو بھیجی۔ میں نے اس اسکین کی تحقیق بریلی شریف کی درگاہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں، تو یہ اسکین فیک پایا گیا۔ اب ان رافضیوں کی حرکتیں دیکھیں آپ کہ یہ ایسے اسکین بنا کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ اسکین فیک ہے۔ اب یہ اسکین نہ تو علامہ اسد رضا صاحب قبلہ دعوت برکاتہ عالیہ نے شائع کیا ہے، نہ ہی یہ بریلی شریف سے شائع ہوا ہے۔ یہ اسکین ان مولائیوں نے، بلوائیوں نے کیسے بنایا، کہاں بنوایا، اس کی ذمہ داری یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیں ہوا کیا کہ اس کو میں کافی دن سے فون لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے مابین ایک گفتگو میری پینڈنگ پڑی ہے، مجھے وقت نہیں مل رہا، میں اس کو ڈالوں گا انشاءاللہ۔ تو اس نے میرے دونوں نمبر بلیک لسٹ پہ ڈال رکھے ہیں، کیونکہ ایک بار میرا اس سے بہت دن پہلے بات ہوئی تھی، جو میرے چینل جمشید علی آن حق پر اس کی ریکارڈنگ ڈلی ہوئی ہے، میں لنک ڈال دوں گا اس کا، آپ سن لیجئے گا۔ اس نے اعلیٰ حضرت کے کتاب پر جھوٹ بولا تھا اور اعلیٰ حضرت کے مابین جھوٹ بولا، تو میں نے اس کو چیلنج کیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں عراق جا رہا ہوں، وہاں سے آ کے بات کروں گا۔ اس کے بعد جب یہ آیا تو جب بات ہوئی تو اس نے میرے دونوں نمبر بلیک لسٹ پہ ڈالے۔ چلیں بہر کے اب ہوا کیا کہ اس تحریر کے ماتحت مجھے اس سے گفتگو کرنی تھی، تو ہم نے اپنے ایک بھائی کو لائن پہ لیا، اور پہلے ہم نے بھائی سے بولا کہ اس سے تھوڑی گفتگو کرو، یہ صحابہ کے بارے میں اور 72 فرقوں والی حدیث کے بارے میں کیا بولتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا جھوٹ اور کتنا فریب سے کام لیتے ہیں یہ لوگ۔ اس نے ہمارے اس بھائی کو لنگڑی ہندی سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے بولا صحابہ سے غلطی ہوتی تھی، صحابہ غلطی کریں گے تو یہ 72 فرقوں والی حدیث کیسے صحیح ہو جائے گی، حضور کیسے صحابہ کو کہہ دیں گے جو میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا۔ تو جب میں نے اس کے منہ سے یہ اگلوا دیا، تو جیسے ہی میں آیا، جیسے ہی میں نے ساجد نام لیا اس کا، اور میں نے کہا اس حدیث کے ماتحت مجھ سے بات کر، تو دیکھیں کس طریقے سے یہ بوکھلایا اور بھاگا۔
اب ان کے جو بڑے بڑے مفتی نام نہاد جو ملا گھوم رہے ہیں نا، قسم خدا کی یہ میرا نام سن کے ایسے بھاگتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ قاری احمد حسن کا کیا حال ہوتا ہے میرا نام سنتے ہی، اب اس کا دیکھیے کیا حال ہوا، بعد میری آواز سنتے ہی بڑبڑ کرنے لگا، اور بڑبڑ کر کے میری ایک بات کا اس نے جواب نہیں دیا۔ حالانکہ میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا کہ میرے نبی نے عشرہ مبشرہ میں کس کو شامل کیا، اور بدری صحابی کے تعلق سے میرے نبی نے کیا فرمایا، تو یہ بالکل ایسا بھاگا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھولے بھالے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، بھولے بھالے لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو ان کو علم کے مابین پتہ نہیں ہوتی، اور وہ بیچارے ایسے جاہل ہوتے ہیں، ایسے ان کی علم کو یہ لوگ ناپ لیتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ جس کا ثبوت آپ کو میں آگے دوں گا۔ فی الحال آپ اس رافضی کی بات کو سنیں اور سمجھیں کہ دیکھیں کس طریقے سے یہ بھاگا، اور اس کے بعد میں ان کے چیلوں کے جو میرے پاس فون آنا شروع ہوئے ان کی بھی آڈیو آپ کو لگاؤں گا۔ پہلے آپ اس کی سنیے، اس کی بکواس سنیے، اس کے بعد بات آگے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہیلو، ہاں جی بولیے سر۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی ہم سے اختلاف ہے، ہمیں رافضی کہہ لو، کافر کہہ لو، کوئی ہم تھوڑی نا کچھ بولیں گے، لیکن تم نے لفظ مولائیت کا استعمال کیا اور پھر ساتھ میں جنازے کا لفظ استعمال کیا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے چشتیت کا جنازہ نکالا تو غریب نواز کی توہین ہوئی، میں نے کہا اشرفیت کا جنازہ نکالا تو مخدوم اشرف کی توہین ہو گئی، تو تم کہہ رہے مولائیت کا جنازہ نکالا تو مولا علی کی توہین ہو رہی ہے نا، من کن تو مولا فاز علی بن مولا۔ نہیں تو وہ ہم ان کو یہی تو کہہ رہے ہیں، یہ بات تو ہم یہی کہہ رہے ہیں، وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی مولائیت کو ہم ان کو نہیں کہہ رہے، جو اصل مولائی تو ہم ہیں، جو مولائیت ارے یہ تو پھر جملے بازی ہے بھائی، اسٹیج میں تم نے مطلقاً مولائیت کی بات کہی نا، وہاں پہ تو یہ تو نے کہا کہ کیسا مولائی کیسا نہیں مولائی، وہاں پہ وضاحت دینی چاہیے۔ اب پھنس گئے ہو تو یہاں پہ تم ڈنڈی مار رہے ہو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو وہ جو ڈالا جو اپنا آپ نہیں ڈالا تھا نا، اپنی بول تھا نا، وہ جو میں نے آپ کو وائس سن رہا تھا میں آپ کی کل، اس میں پورا خطرے کے لار، اور آپ نے اس میں نیچے بھی آپ کی کلپ آئی تھی، وہی سن رہا تھا میں، تو اس میں آپ وہ ڈال بھی رکھا تھا آپ نے، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اب ان کو پوچھے تو وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مولائی کو ان کو بولا ہے جو ابو بکر صدیق کی ذات میں بولتا ہو، وہ مولائی سنی کون بول رہا، مجھے بتاؤ نا کون مولائی بول رہا؟ ابھی جیسے ایک بار بتاؤ، سید ابن حیدر زیدی میاں ماریرہ شریف والے، انہوں نے ویڈیو بنایا ہے ان کے خلاف۔ ہاں تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں۔ ہاں رکو میری بات سنو نا، سید کامران چشتی اجمیر شریف سے، سید عالمگیر اشرف یہ سلسلہ اشرفیہ کے جو شیخ ہے، اس طرح سے تو ابھی سبھی نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی ہے نا، تحریریں لکھی ہے نا، تو مطلب وہ سب بیوقوف ہے۔ خالی جامع اشرف جو پہلے رضوی اسٹیج میں جا کے مولائیت کے خلاف بات کر لی، اب پھنس گیا تو یہاں پہ ڈنڈی مار رہا ہے، تو خالی وہی سمجھدار ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات سنیے آپ نے جتنے ندر صاحب کی بات کری، تو ہمارے یہاں اختلاف ہوتا ہے جتنے ندر صاحب کا، تو جیسے نا حضور کی 72 والی حدیث کو ٹکراتے ہیں۔ یہ کون سی حدیث؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، 73واں فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا، جو میرے صحابہ اور اہل بیت پہ ہوگا، قرآن اور حدیث پہ ہوگا، سیدھے راستے پہ ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ان کی تحقیق ہوگی نا، وہ ڈائریکٹلی ایسے کیسے کہیں گے؟ آپ ان کی تحقیق ان سے پوچھیں، علمی رد کریں۔ تو وہ بات ہی نہیں کر رہے نا، اس میٹر میں بات ہی نہیں کرتے وہ۔ نہیں تو بات وہ کس سے کریں گے؟ علماء سے کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے بڑے بڑے عالم ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے عالم گئے ہیں، تو ابھی میری بات سنو آپ، ابھی یہ جو حدیث آپ نے پڑھا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، بھائی یہ حدیث بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، بریلی مدرسے میں 12 سال پڑھائی کی ہے، آج تک ہم نے اہل بیت کا نام ہی نہیں سنا ان کے منہ سے۔ انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ جو میری سنت اور صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو یہ روایت کہاں سے آپ کہہ دو گے صحیح روایت ہے بھائی؟ کہ صحابہ میں اختلاف نہیں ہوا، کہ صحابہ میں گناہ نہیں ہوا، کہ صحابہ نے غلط کام نہیں کیا؟ بہت سے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے غلط کام کیا، حتیٰ کہ حدیث یہ والی پڑھنی چاہیے تھی کہ نبی نے کہا، سنو صحابہ نے بہت سارے غلط کام کیے، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو میری بات نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کیا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہے تو نبی ہمارے لیے حجت صحابہ کو کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ ان کی غلطی پھر وہ جو بھی ان کا عمل ہوگا وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوگا نا۔ تو ان کی غلطی کو صحابہ کی غلطی تو ہینڈ پہ معاف ہو جاتی تھی نا، وہ تو اللہ نے۔ ارے ایسے کیسے بھائی تم کیا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے تھوڑی تحقیق کرے،
ये सुनी सुनाई बात से ज्यादा अहम ये होता है। हेलो 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 हजरत ये बात करो इनसे, ये हेलो। लाइन पे है, ये हमारी साजिद अशरफी साहब, हाँ, कौन आप बोल रहे हैं? जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। बात तुम डायरेक्टली सामने क्यों नहीं आते? नहीं, सामने हूँ ना, तुम्हारी चोरी पकड़ने के लिए, तुम्हारे चोरी पकड़ने के लिए। तुमने कहा कि सहाबा किराम के ताल्लुक से हुजूर ने कुछ फरमाया नहीं। खुलफाए राशिदीन का मतलब क्या होता है? तुम दलाल क्यों बनते हो? खुलफाए राशिदीन का माना क्या होता है? खुलफाए राशिदीन का माना क्या होता है? अरे सुनो, भागना नहीं, भागना नहीं, मेरा नाम सुन के। डायरेक्टली क्यों? खुलफाए राशिदीन का क्या माना होता है? 1 मिनट तुमसे बात में अशरा मुबशरा किसको कहते हैं? हेलो, भागना नहीं अशरफ साहब, अशरफ साहब भागना नहीं। अभी तुमने बोतान बांधा है कि सहाबा गलतियां करते थे, सहाबा से गलतियां होती थी। तो मुझे बताइए, खुलफाए राशिदीन मेरे नबी ने किसको कहा? खुलफाए राशिदीन किसको कहा मेरे नबी ने? भागना नहीं, भागना नहीं, आराम से बात कर, आराम से बात कर, आराम से, आराम से बात कर, आराम से, आराम से। झूठे मक्कार इंसान आराम से लोगों को गुमराह करता है। मेरे नबी ने अशरा मुबशरा किसको कहा? किस 10 सहाबी को जन्नत की बशारत दी? मेरे नबी ने अशरा मुबशरा किसको कहा? खामोश, खामोश, भागना नहीं, भागना नहीं। भोले भाले लोगों को गुमराह करता है। और ये जो तूने फतवे के नीचे अपनी वॉइस भेजी है, तो ये फतवा सही साबित कर सकता है कि ये बरेली शरीफ से शाया हुआ है? ए साजिद अशरफी, मैं कह रहा हूँ, तू ये फतवा सही साबित कर सकता है? तू ये फतवा सही साबित कर सकता है? तू ये फतवा सही साबित कर सकता है जो तूने नीचे अपनी वॉइस भेजी है कि बरेली शरीफ से ये फतवा शाया हुआ है? हरामखोर, झूठे मक्कार, झूठे साले, झूठ बोलता है तू, लोगों को गुमराह करता है। तू जितने स्कैन और जितने तूने फेक स्कैन बना बना के वीडियो बनाई है ना, तेरे अंदर दमखम है तो मेरे सामने बैठेगा? जाहिल आदमी तेरे अंदर, मैंने पहले भी तुझको चैलेंज किया था, मेरे सामने बैठेगा? मेरे सामने बैठेगा? आप एक काम करो ना, मैं कह रहा हूँ मेरे सामने बैठेगा? मैं आऊँ तेरे एड्रेस पे? मेरे सामने बैठेगा? इसने हारून भाई, इस शख्स ने ऐसे फेक स्कैन बना बना करके वीडियो शाया की है। अभी इसने दुर्रे मंसूर पर झूठ बोला था, मैंने इसकी चोरी पकड़ी थी। इसने तफसीर मदारिक पर झूठ बोल के वीडियो बनाया था, इसकी मैंने चोरी पकड़ी थी। अब इसने जो ये फतवे पे अपनी वॉइस नीचे भेजी है ना, मैं कसम खुदा की कहता हूँ 1 लाख का इनाम दूंगा, ये फतवा सही साबित कर दे कि ये बरेली शरीफ से शाया हुआ है। ये इतना बड़ा झूठा मक्कार इंसान है। इसने राजस्थान में एक स्पीच दी थी आला हजरत के ताल्लुक से। मैंने इसको उस टाइम भी चैलेंज किया था, तो इसने कहा मैं इराक जा रहा हूँ, वहां से आगे बात करूंगा। उसके बाद इसने मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाले। और ये मेरी आवाज सुन के कसम खुदा की ऐसे बिरनी की तरह नाचता है ना, ये मेरे सामने बैठने की इसकी जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे भागा ये। मैंने इसको कहा ना, मैंने कहा हुसैन साहब है तो 72 वाली हदीस साहब क्या, तो इल्म से बात करो। नहीं, ये क्या, इसने अभी क्या झूठ बोतान बांधा कि सहाबा से गलतियां हुई। अबे जाहिल के बच्चे, मेरे नबी ने अशरा मुबशरा में किसको शामिल किया? हाँ। मेरे नबी ने बदर के बदरी सहाबी को जन्नती कहा या नहीं कहा? पहला मुकाम किस सहाबियों का है? जो बदर के मैदान में जंग लड़ी जिन्होंने। और ये सुनो, इसने तीसरा झूठ क्या बोला, सुनो, इसने तीसरा झूठ क्या बोला मरदूस शैतान ने, कि हम लोग ये कहते ही नहीं कि मेरी और मेरे अहले बैत। अबे जाहिल के बच्चे, जितना हम कहते हैं उतना तुम नहीं कहते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान, सुनिए नहीं, वो यूँ कह रहा था कि आप कह रहे हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो सहाबा और सुन्नत और अहले बैत। अरे मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना भाई, सुनो ना भाई, सुनो ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ताल्लुक से 2 हदीसें मिलती हैं। एक तो ये कि तुम्हारे दरमियान में भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, 2, एक मैं और एक मेरी अहले बैत, ठीक है? तो दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया बनी इसराइल में 73 फिरके होंगे, 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 होंगे, एक जन्नत में होगा, बाकी जहन्नम में जाएंगे। तो फरमाया या रसूलल्लाह उनकी पहचान क्या होगी? फरमाया जो मेरे असहाब की सुन्नत पर अमल करेगा, यानी असहाबुल हदीस, ये अहले सुन्नत वल जमात, ठीक है? तो मुझे ये बताइए कि अशरा मुबशरा में मेरे नबी ने किसको शामिल किया? भाई सबसे पहला मकाम किन सहाबियों का है? बदरी सहाबियों का है, जो बदर के मैदान में लड़े। और ये मर्दूस शैतान, एक चीज और बताऊं आपको मैं पते की, कि इन मर्दूस शैतान को इल्म तो होता नहीं है, ठीक है? अब इन बलवाइयों से ये पूछो, ये कहते हैं ना कि हमें मौलाई कहते, तो हजरत अली की क्या कहते हैं तरफ निस्बत हुई। अबे जाहिल के बच्चे, हजरत अली की तरफ तो निस्बत जब होगी कि जब हम हजरत अली के ताल्लुक से बोलेंगे। तुमने अपने आप को जो मौलाई नाम लगाया है कि हम मौलाई हैं,
ठीक है, तो मौलाई का ये माना हरगिज नहीं होता है कि निस्बत हजरत अली के साथ जाके जुड़ी, ये निस्बत तुम्हारी तरफ इसलिए जुड़ी क्योंकि तुमने हजरत अली की तरफ झूठ मंसूब किया, झूठ मंसूब किया, सही है। ठीक है। और तुम कहते हो कि मौलाई तो अशरफी का नाम तुमने बोला, तो अशरफी सिलसिले की, अशरफी का नाम हमने बोला तो अल्लामा अशरफी सिलसिले की बुराई नहीं हुई, तुम्हारे जैसे नाम निहाद अशरफियों की बुराई हुई। हाँ, सही क्योंकि देखिए ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की सुन्नत है, क्योंकि आपने फरमाया अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन में कि हनफियाओं को क्या फरमाया आपने, जहन्नमी फरमाया। हाँ, ठीक है, तो अब क्या उनकी निस्बत इमाम अबू हनीफा की तरफ थी? नहीं, उस दौर में जो आज तक जैसे देवबंदी है ये अपने आप को हनफी कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना। तो इसी ताल्लुक से कि जो इमाम अबू हनीफा को मानेगा भी और वो इमाम अबू हनीफा के मसले में चलेगा लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो काफिर है वो। इसी ताल्लुक से गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया गुनियतुत तालिबीन में, इनके जितने बड़े बड़े मुल्ला है ना हारून भाई, मेरा नाम मेरी आवाज सुनते ऐसे भागते हैं ना बिरनी की तरह, भाग गया ना वो। समझे? और इसने ये फतवा फेक बनाया है, इसने ये फतवा फेक बनाया है और इसी ने ये फतवा फेक बनाया और ये वॉइस छोड़ी है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, 1 लाख का इनाम देता हूँ इस हरामखोर को। सुनो, इस हरामखोर को मैं 1 लाख का इनाम दूंगा, ये फतवा सही साबित कर दे। बस ये कह दे अपनी वॉइस में कि हाँ भाई ये फतवा बरेली शरीफ से शाये हुआ। मैं तो उस बंदे को ढूंढा जिसने फतवा लिखा है, कसम खुदा की छुचुंदर अटका दूंगा उसके गले में, मैं ऐसी कार्रवाई कर दूंगा उसके खिलाफ। झूठ बोलता है। लगाओ इसको, दोबारा लगाओ इसको। चलो। तो सामने इकराम, आपने इसकी बात को सुना और कैसे ये फ़ोन काट के भागा और मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है कि तू डायरेक्ट फ़ोन क्यों नहीं करता और मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट पे डालता है। इसीलिए हम अपने भाई को बीच में लेके इससे बात करानी हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन होता क्या है, ये ऐसे भागता है हमारा नाम सुनते ही कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वो सामने आपके देख लिया, आपके सामने पेश नज़र है, मौजूद है। अब देखिए, इसका फ़ोन कटते ही एक ऐसे शख्स का फ़ोन आता है कि मैं उसके क्या करूं, उसके ऊपर तरस खाऊं, उसको दुआ दूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये लोग क्या हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिसको इल्म नहीं होता, जिसको ये नहीं पता होता कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वज़ू कैसे किया जाता है, गुस्ल कैसे किया जाता है। अब देखें, इसका फ़ोन आया मेरे पास, इसका फ़ोन कटते ही एक फ़ोन आया मेरे पास। अब वो शख्स से जो मेरी गुफ्तगू हुई आप उसको समाअत फरमाएँ और आप समझ जाएंगे कि मैं जब उसको बार बार कह रहा हूँ कि अपने आलिम को लाइन पे ले ले, जिसको तो आलिम मानता है उसको ले ले, उसको लाइन पे ले ले। अब देखें, आप खुद फैसला करें। मैं रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ना मैंने कोई बदतमीज़ी की, ना मैंने कोई उसको ऐसी बात बोली, मैंने सिर्फ उसको समझाने की कोशिश की। लेकिन बात वही है जो घूम फिर करके कि किसी को एक रास्ते पे ढकेल दो, आँख पे पट्टी बांध के, तो वो उसी पे चलने के लिए राज़ी हो जाता है, ऐसे ऐसे जाहिलों की वजह से। अब देखें, आप सुने रिकॉर्डिंग। हेलो जी हजरत, फोन काट दिए आप। मैंने फोन काट दिया? हाँ, मैंने फोन काट दिया? कहाँ तो कट गया ना, तो हम कहा भाई अब पता नहीं क्यों कट गया। आप काट दिए कि अपने से कट गया? इल्जाम क्यों लगाते हो? मैंने कहाँ काटा फोन, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ, ये बात सही है, इसीलिए कटा है ना। बताइए किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मैं हुसैनी सुन्नी हूँ। हुसैनी सुन्नी क्या होता है? हाँ, हुसैनी सुन्नी क्या होता है? आपको नहीं मालूम है क्या? हमने तो पढ़ा नहीं कहीं हुसैनी सुन्नी। अरे मेरे भाई, यही तो पूरा है। नहीं, कैसे है? कहाँ से लाए आप निकाल के हुसैनी सुन्नी? हुसैनी सुन्नी तमाम किताबों में लिखा हुसैनी है। नहीं होता है, हुसैनी होता है। हुसैनी क्या होता है? हाँ हाँ, वही होता है। मैं देखिए पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हुसैनी इसीलिए तो मैं कहाँ, कौन सी किताब में लिखा है? कहने का मतलब इसीलिए मैं पढ़ा लिखा ना, इसीलिए तो मैं आपके पास कॉल किया हूँ। थोड़ा मेरा एक सवाल है। ये हुसैनी सुन्नी कहाँ से लाए, पहले ये बताइए। हाँ, हुसैनी सुन्नी कहाँ से निकाल के लाए आप लोग? कौन सी किताब से लाए, कहाँ से लाए? अरे मेरे भाई, हुसैनी सुन्नी आपको मालूम नहीं है क्या? जाहिल वाहिल हो क्या? पूछ तो रहा हूँ, कहाँ से निकाल के लाए? हमने नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा हमने। आप तब मैं क्या बताऊं यार, क्या बताओ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निकाल के लाओ। जैसे कहने का मतलब है, हुसैनी सुन्नी होता है कि नहीं? कैसे होता है? क्यों, हुसैन को नहीं मानते हैं क्या आप? नहीं, हुसैनी सुन्नी, हुसैन मानते तो हम सबको है, तो फिर सबके नाम जब से बता हुसैन देंगे को क्या? मानते हो तब हुसैनी सुन्नी हुए ना? नहीं हुए ना। क्यों नहीं हुए? नहीं भाई, ये तो आपकी गलती है। गलती कैसे है?
ये हुसैनी सुन्नी का ये लकब है। लकब कैसे हो जाएगा? क्यों? ना, तो इसका मतलब आप हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते नहीं हैं। नहीं, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो हम मानते हैं, लेकिन आप गलत तरीके से तो मानते हैं। किस तरह से माना जाए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे माना जाए कि जिस मानने की तरीके से मुराद नबी ने मिल जाए? फरमाया है। कैसे फरमाया है? मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, हदीसे सकलैन। एक मैं एक मेरी अहले बैत। हाँ जी, तो अहले बैत का तो जिक्र आप आया है ना। हाँ, तो अहले बैत का जिक्र है, तो आप तो मैं हजरत वही अली को छोड़ देंगे, हजरत फातिमा को छोड़ देंगे, कहने हम छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ हजरत। हुसैनी कहाँ से आ जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि हुसैनी तो आया ही नहीं है कहीं कि अपने आप को हुसैनी यार, आप सुन्नी नहीं बात बोलो। कर रहे हैं आप। अब मुझे बातें नहीं करने दे रहे। हम कह रहे हैं कि हुसैन को जब मानते तो मैं हुसैनी हूँ ना। हुसैनी कैसे हो जाएंगे आप? हुसैनी जब कहेंगे अब तो अपने आप आप को, जबरदस्ती कर रहे हैं ना। सुनिए भाई, आप अपने आप को हुसैनी जब कहेंगे जब आप हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर पूरा खड़े उतरेंगे। तो क्यों उस पर नहीं उतरेंगे क्या? अच्छा, नमाज पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ता हूँ? गुस्ल करते हो? सब कुछ करता हूँ। गुस्ल में कितने फर्ज वाजिब सुन्नत है? 4 है। गुस्ल में 4 सुन्नत है, 4 हाँ। फर्ज है। हाँ, 4 फर्ज है गुस्ल में। तो कितना है? अच्छा अच्छा, कौन कौन से जरा बताओ तो। आप तो इसमें हम मेरा जो सवाल है उसमें तो आप करते तुम्हारे नहीं सवाल हैं। का भी जवाब देंगे, पहले देख तो ले तुम्हारी ना। चार फर्ज बताओ गुस्ल के। हाँ गुस्ल के 4 फर्ज बताओ। हाँ, बताएं। बताओ गुस्ल के 4 फर्ज बताओ। मैंने गुस्ल कहा के ना कि 4 हुसैनी आजकल के नाम निहाद जो हुसैनी है उनको ये नहीं पता गुस्ल में फर्ज कितने हैं, और वो अपने आप को हुसैनी होने का दम भरते हैं। तब मजार पे मुजावर वगैरह हो क्या तुम? क्या? मजार वगैरह पे बैठते हो क्या? नहीं, मैं मजारी नहीं हूँ। मजारी नहीं हो? अच्छा, नहीं। मजारी हो। हाँ, नहीं, मैं हुसैनी सुन्नी हूँ। हाँ, तो बताओ गुस्ल के देखिए, 4 फर्ज आप बताओ। मेन पॉइंट पे आए। आप ये जो पहले मेरा गुस्ल सवाल है के इसको 4 फर्ज बताइए। बताइए। पहले उसूल के 4 फर्ज बताइए, कहाँ से निकाल के लाए 4 फर्ज? अरे यार, मैं क्या, मेरा सवाल ही नहीं आप बता रहे हो, नहीं, मैं क्या बताऊं? तुमको जब गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है तो तुम्हारी नमाज कैसे होती होगी? नमाज तो हो जाएगी, ये कैसे बात हो सही है। जाएगी जब गुस्ल का तरीका ही नहीं पता तो? अरे सब पता है। आप क्या पता है बताओ? 4 फर्ज कौन कौन से हैं? आप बताए ना भाई। क्या इसको बताया? छोड़िए, इसको छोड़िए, पहले ये पहले बताइए। 4 फर्ज तो बता दो, फिर आगे चलेंगे ना। नहीं यार, अपना आप पाकी इसी में को साबित कर दो। आप लोग का यही काम है कि सीन काम में बजा देते हैं, मतलब है ना? ये सीन काम है। माअज़ल्लाह, कहने का अगर मतलब तुम्हारा सुनो तुम्हारा गुस्ल यार, नहीं होगा। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, मैंने सवाल मैं का सवाल का दे जवाब दीजिए, मैं तो दूंगा। सवाल कर रहा हूँ। मैं सवाल का जवाब दूंगा, पहले ही बताओ। जब तुम्हारा गुस्ल ही नहीं होगा सही से तो तुम्हारी ना अच्छा, नमाज छोड़िए। होगी ना इबादत होगी। चलिए, हमारा नहीं होगा, चलिए हम मान लेते हैं हाँ, तो हमारी नहीं बताओ, होगी, पहले ठीक है 4 ना? फर्ज बताओ। कहने पहले का 4 मतलब फर्ज, है, 4 ये फर्ज मेरा बताओ। सवाल एक बताएं कि मतलब जो मुस्लिम शरीफ का ये हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, 1 जन्नत में जाएगा, वो कौन सा फिरका है? मतलब ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है? किसमें है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसमें है? मुझे नहीं पता, आप बता रहे हैं मुस्लिम शरीफ में। भाई, मैं तो यही उलमाओं से सुना हूँ कि कौन से मुस्लिम उलमा ने शरीफ में बताया है। कि मुस्लिम शरीफ में है ये हदीस? अरे बहुत से उलमा है जी। किसने? एक का नाम बताओ। अजीब हाल है, क्या आप अरे तो पढ़े नाम नहीं क्या बताओ। मुस्लिम? अरे नहीं, एक का नाम तो बता दो। इतनी मशहूर हदीस है, आप हाँ, तो नहीं समझ पा रहे? एक का नाम तो बता दो। हाँ, किस उलमा ने कहा? मैं भी तो देखूं ना कि तुम्हारे जैसे अल्लामा यासीन कादरी अच्छा, तो उन्होंने मुस्लिम शरीफ का नाम लिया है? जी। अल्लाह की लानत हो झूठों पर, आमीन बोलो। तो किस पे इसमें है? अबे तिरमिजी शरीफ में है। अरे तिरमिजी में भी है, मुस्लिम भी है, मुस्लिम में सब नहीं तो है, तिरमिजी शरीफ में है। हाँ, तो बताइए आप, तो इसका मतलब पहले क्या है? तौबा करो कि एक आलिम कभी झूठ नहीं बोलता है, हदीस पर तौबा करो। मैं यार, आप तो बात ही नहीं समझ रहे हैं यार। अच्छा, हाँ बताओ कि 72 फिरके वही जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा, वो हाँ, कौन तो सा है? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा। कौन सा फिरका है कि इसको कुरान और हदीस से कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये हदीस का बयान फरमाई थी 1400 बरस पहले, हाँ। ठीक है ना? तो हुजूर के दुनिया से रुखसत होने के बाद जब अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत आई, है ना? हाँ, बताइए। तो एक शख्स ने नबूवत का दावा किया था और उसने ज़कात देने से मना कर दिया था। क्या? कि अब हुजूर चले गए, अब ज़कात नहीं दी जाएगी। अच्छा। और उसने नबूवत का दावा भी किया था। अच्छा, तो उसका नाम क्या था? सुनिए ना भाई,
تو جب صحابہ کی جو جماعت تھی، صحابہ کی جماعت نے اس قبیلے کو پہلے الگ کیا. اب وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں. تو اس قبیلے کو جب الگ کیا تو جب ان کے قبیلے میں کوئی صحابہ میں سے جاتا تھا، جیسے حضرت علی کو 2 بار بھیجا گیا وہاں پر سمجھانے کے لیے ان کو، کیونکہ حضرت علی بہت زیادہ علم والے تھے، علم بہت رکھتے تھے. تو اس قبیلے کو جب سمجھانے گئے 2 بار تو وہ لوگ نہیں سمجھے. ٹھیک ہے، تو حضرت علی، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اب ان سے جنگ کی جائے. اچھا. پھر جنگ ہوئی. اس جنگ میں 10,000 سے زیادہ صحابی شہید ہوئے. اچھا. تو اب یہ جب اس قبیلے والے ادھر آتے تھے تو اپنے آپ کو اس شخص کی طرف نسبت کرتے تھے. اچھا. اور جو صحابہ والے تھے وہ اپنے آپ کو حضرت ابوبکر کی طرف نسبت کرتے تھے، کیونکہ سب نے بیعت کر لی تھی حضرت ابوبکر کی. اچھا. تو اب حق کا پہچان کیسے ہوا کہ باطل کو علیحدہ رکھنے کے لیے اپنی پہچان حق کی طرف لگانا. اب یہ لمبی ہو جائے گی بات. اسی میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت آیا تو ایک خارجی فرقہ اٹھا، اس نے حضرت علی کو خدا کہا. اچھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ تم مجھے خدا کیوں کر کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے فرمایا آپ کے مابین کہ آپ کے اندر وہ خدا والی نسبت دکھتی ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے، ان لوگوں کو زندہ جلا دیا جائے. تو جب ان کو زندہ جلایا گیا انہوں نے کہا اب تو کنفرم ہو گیا کہ آپ ہی خدا ہو، کیونکہ آپ دے رہے ہیں عذاب، اور عذاب دینا اللہ کا کام ہے. اس کے بعد ایک فرقے نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کافر کہا. تو حضرت علی نے بولا ان سے جنگ کی جائے گی. تو جنگ کے میدان میں جب اترے تو اب حضرت علی کا نعرہ لگایا جاتا تھا جنگ میں، تو جو اپنے چہرے کو خوشگوار رکھتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو حضرت علی کا نام سن کے منہ بگاڑتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. یہ پہچان تھی حق اور باطل کی. اچھا. تو یہ جو جماعت شروع سے چلی آ رہی ہے تو اس میں ہمیں ایک سیکھ دی. سنیے نا بھائی، ارے سن تو لیجیے نا ذرا. اس میں ہمیں سیکھ دی ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن ہم کو اپنا نسبت لگانی ہے حق کی طرف، اس دور کے محدثین کی طرف. کیونکہ حضور کی حدیث ہے مشکاۃ شریف میں اور ابن ماجہ میں اور بہقی شریف میں کہ حضور نے فرمایا ہر 100 سال میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو دین کو ابھار دے گا، جس کو مجدد کہا جائے گا. اچھا. ہر 100 سال میں. کیا فرمایا حضور نے؟ ہر 100 سال میں. ٹھیک. تو اب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ تابعی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ٹھیک ہے، امام بخاری، امام مسلم، یہ ہر 100 سال میں اپنے اپنے مقام پر تشریف لائے، اور ہر وقت باطل سے علیحدہ رکھنے کے لیے اپنی نسبت حق کی طرف لگانی تھی. ہاں تو مطلب وہی کہ حق کیا ہے وہی میں پوچھا، وہی بتا رہا ہوں کی طرف ہم جاؤں. ارے وہی تو بتا رہا ہوں. حق یہ ہے کہ جو شریعت اور جو صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت جو ٹھیک ٹھیک طریقے سے ہم تک محدثین نے پہنچائی. اچھا. اور شریعت کا معنی یہ ہے کہ جیسے امام بخاری نے بخاری شریف حدیث لکھی، اچھا، تو اب صحابہ نے تو نہیں لکھی، نہ ہی اہل بیت نے کوئی حدیث کی کتاب لکھی. تو امام بخاری نے جو حدیث کی کتاب لکھی، راوی اکٹھے کیے، حدیث اکٹھا کیا، تو وہ اپنے وقت کے مجدد تھے، اور انہوں نے حدیثیں اکٹھا کر کے کتاب بنائی بخاری. انہوں نے اپنا نام رکھا، کتاب کا نام پہ اپنا نام بخاری اس لیے رکھا، جو نافذی لوگ تھے ان کے زمانے میں وہ ان کے اوپر لان تان کرتے تھے، اور جو اپنی نسبت بخارا کی طرف لگاتا تھا، بخاری کی طرف لگاتا تھا کہ ہم بخاری والے ہیں، تو وہ حق پر مانے جاتے تھے. اچھا. اسی طریقے سے امام مسلم، اب جو انہوں نے تعلیم دی ہے، جو شریعت ہم تک پہنچائی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شریعت کے اصول، شریعت کے احکام، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت جو ہم تک پہنچائی ہے، بس اب ہمیں اسی کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے محدث نے یہ چیزیں سیم ٹو سیم ہم تک پہنچائی. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں آج کی تاریخ میں، حق کیا ہے آج کی تاریخ میں سنیے نا، آج کی تاریخ میں احمد رضا خان خالد بریلوی انہوں نے سیم ٹو سیم اور وہی شریعت جو ہے ان دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے، قادیانیوں سے، رافضیوں سے، نافذیوں سے بچا کر کے ہمیں سکھایا اور ان سے جنگ کی.
यानी देवबंदियों के ऊपर कुफर के फतवे बाइस किए जब इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी की, हजरत फातिमा तो जहरा की शान में गुस्ताखी की। मौलाना बटालवी ने हेलो हेलो, हाँ हेलो, फोन कैसे कट गया आपका? कट जाता है यार, जैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। अच्छा अच्छा, तो जैसे हजरत फातिमा तो जहरा की शान में जब मौलाना बटालवी ने गुस्ताखी की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बहन, तो इसका जवाब अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने अपने कलम से दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ठीक है। और जब हुजूर के इल्म गैब पर उंगली उठाई तो आपने किताब लिखी अद-दौलतुल मकिया, जिसमें हुजूर का इल्म गैब कुरान हदीस से साबित किया। ठीक है। इमाम हुसैन के माबैन इन्होंने जो उंगली उठाई कि जो जंग हुई थी, जो करबला की जंग हुई थी, वो सियासी जंग पे थी, यानी यजीद को भी माज़अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुसैन को भी क्या कहते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी ये लोग मानते हैं और यजीद को भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसका जवाब किसने दिया? अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने दिया। इनसे जंग की, इल्मी गुफ्तगू की और इल्म के मैदान पर जहाँ से पास पड़े वहाँ से ले लो, इल्म के मैदान में इनको कोरा कर दिया। तो इस दौर में हमें अपनी निस्बत उस तरफ लगानी है। अब आपने कहा कि शरीयत क्या है, हक क्या है, तो ये समझने के लिए आपको मदरसे जाना पड़ेगा। फोन पे तो आदमी नहीं समझा पाएगा। हाँ, तालीम हासिल करनी पड़ेगी ना, बिना तालीम के सीख लेंगे क्या? अभी मैं आपको बोलूँ कि इंजीनियर क्या है तो आपसे मुझसे पूछेंगे इंजीनियरिंग क्या है, तो मैं बोलूँगा ना इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा, फिर स्कूल से निकल के कॉलेज में जाना पड़ेगा। ऐसे फोन पे थोड़ी आदमी तुमको समझा देगा कि इंजीनियरिंग क्या है और इंजीनियरिंग के कोर्स क्या क्या है। भाई इस्लाम है, कोई मजाक है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ हजरत कि जो का नाम बता तो दिया मैंने आपको, नाम कौन है? अहले सुन्नत, नबी के जुबान से अहले सुन्नत वल जमात, मेरी अहले सुन्नत वल जमात। अच्छा अच्छा सर, एक बताइए हमको, ये जैसे अहले सुन्नत वल जमात ये कब से इजाद हुआ? कब से इजाद हुआ? अरे जो हदीस तुमने पढ़ी है उसी के अंदर है ना। अल्लाह के रसूल से पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी जमात होगी जो जन्नत में जाएगी, तो आपने फरमाया जो मेरे असहाब की सुन्नत पर अमल करने वाली होगी, यानी असहाब अहले सुन्नत वल जमात। हदीस है। किसने बोला ये ज़ईफ हदीस है? अरे बहुत से उलमा बयान कर रहे हैं भाई। वो उलमा को वो उलमा को बोलो, वो उलमा का मुझे नाम बताओ जिसने ये कहा है कि ये ज़ईफ हदीस है। अरे किसने कहा ये ज़ईफ हदीस है, पहले ये बताओ। सुनिएगा, इमाम तिरमिजी इस हदीस को लेके आए। इमाम तिरमिजी लिखते हैं इन्ना इस्नादुल सही। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब हदीस परखने के लिए सरकार ने दे के गए हैं क्या चीज, दोबारा बोलिए। जैसे जो हदीस परखने के लिए, समझने के लिए हदीस मतलब सरकार किस मेयार, क्या मेयार दिए थे? हुजूर का मेयार ये, हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी तरफ जानबूझकर झूठ मंसूब किया अपना ठिकाना जहन्नम करे, और जिसने जानबूझकर मेरी तरफ गलत हदीसें बयान की या गलत निस्बत की तो अपना ठिकाना जहन्नम करे। सहाबा इकराम हजरत अली से फरमाते थे कि अली हम बहुत सी हदीसों को छुपा लेते हैं ताकि हमें हुजूर की वो बात याद है। अब जितनी हदीस बयान करी है और उसकी सनद सही है, तो मुहद्दिसीन ने जिस हदीस को हाजा इस्नादुल सही की जमात कही है तो वो सही है। तो इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को सही लिखा, इमाम तिरमिजी लेके आए ना। अरे इमाम तिरमिजी लेके आए ना इस हदीस को, तो इमाम तिरमिजी ने इसकी सनद इस्नादुल सही लिखा है। किसने तुमको जाहिल ने बोला कि हदीस ज़ईफ है? अली मिर्जा ने बोला था तो उसकी पिटाई हुई, उलमा से भागता फिर रहा है वो, फिर उसने गलती की माफी मांगी। और किसने बोला इसको ज़ईफ? हेलो, हेलो, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ हजरत कि मेयार क्या है? बता तो दिया तुमको। उसके रावी लेके जाते हैं, अस्मो रिजाल लेके जाते हैं। अस्मो रिजाल को समझने के लिए ऐसे मेयार नहीं है सरकार की, नहीं है, नहीं है। अस्मो रिजाल लेके जाएंगे ना। सुनिए, अस्मो रिजाल मैं जान रहा हूँ कि कैसे सरकार ने कहा कि मतलब मेरी जो हदीस परखने का मेयार है कुरान और मुतवातिरा हदीस से परखो और अकल से। कहाँ लिखा है?
बहुत जगह लिखा है। आप बताओ बताओ, एक रिवायत बताओ, बड़ी किताबों में जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, आप पढ़े लिखे, मैं बता दिया। अरे तो तुम गलत बोल रहे हो ना, मैं कैसे तुम गलत हुजूर की तरफ गलत निस्बत कर रहे हो ना, हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया। आप लोग इतनी बुखारी में आदत ज्यादा झूठी हदीस है, आप उसको बयान। अरे झूठी हदीस किसने बोला यार? तुम्हें हुसूल के 4 फर्ज नहीं मालूम है, तुम 4 फर्ज लेके बैठे हो हुसूल में, तुम हदीस को समझोगे? क्यों यार जाहिल आदमी बात करते हो आप? हेलो, मैं कह रहा हूँ ये हुजूर ने कहाँ फरमाया कि हदीस को कुरान से बदलता जाए? कहाँ लिखा ये? अरे कहाँ लिखा, कहाँ पढ़ लिया तुमने? हेलो, आप पहले समझिए ना उसको। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पढ़ा तुमने? कहाँ लिखा ये कि हदीस को कुरान से समझा जाए? भाई हदीसें इतनी सारी है, आप मुझे बताइए कुरान में आए शादी का नमाज जोर है कुरान के अंदर? अभी देखिए, आपको हदीसें की बात भी नहीं मालूम है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आगे फदक भी मालूम नहीं है, बागे फदक भी नहीं मालूम है, बागे फदक भी नहीं मालूम, कुछ भी आपको मालूम नहीं। बागे फदक, एक मिनट, बागे फदक भाई, हेलो हेलो हेलो, कहाँ भाग गए फोन काट के जनाब? हम क्यों काटेंगे भैया, मैं काटता थोड़ी हूँ। अच्छा, काटते नहीं है? नहीं, वो अपना अच्छा चले, आप बताएं हुजूर ने कहाँ फरमाया कि हदीस को समझने के लिए कुरान से समझा जाएगा? जरा अरे बताइए। आप मैं कह दिया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। अरे तो जाहिल आदमी, जब तुमको पता नहीं है तो झूठ क्यों बोलते हो हुजूर की? मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ। और क्या बोल रहा है तू? झूठी तो बोल रहा है, गधा मैं कहीं कह का। रहा हूँ कि तमाम किताबों में लिखा तमाम है। किताबें? कौन सी आप किताबें? से संपर्क करें। कौन सी आप किताबें? किताब जब पढ़ रहे हैं तो कौन सी किताब है ना? कौन सी किताब? बहुत किताब में लिखी हुई कौन सी किताब में लिखी है? आप नहीं समझ पाएंगे। अरे तो तू बता ना, कौन सी किताब में लिखी है? आप लोग वही हैं कि मतलब बदतमीजी पे उतर जाते। अरे तो बदतमीजी तो तुम कर रहे हो। आप लोग को तो पता होता नहीं है। आप लोग कहते हैं झूठ बना, यानी झूठ पर तुम्हारी मजहब चली। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा कौन सा मजहब चल रहा है झूठ पर? ये तुम झूठी तो बोल रहे हो, और क्या बोल रहे हो? मैं मेरा वारिस है अली, मेरा वारिस है अली, और मेरा तुमको हुसूल का तरीका नहीं मालूम और वारिस हो जाएंगे तुम्हारे? क्या तरीका है जी? तुमको हुसूल का तरीका नहीं मालूम, तुमको नहाने का तरीका नहीं मालूम है, नापाक इंसान। तुम अपने वारिस बनाए बैठे हो। आ रहे हो बात करने। मैं कह रहा हूँ तुमने कहाँ पढ़ा? ये कौन सी किताब में पढ़ा कि हुजूर ने फरमाया कि हदीस को कुरान से सीखो? उलमाओं से सुना हूँ, कारी अहमद हसन से सुना हूँ। तेरा कारी अहमद हसन बैंगलोर में क्या हालत हुआ? अल्लामा यासीन का तेरा डिप्लोमा वाले बाबा का क्या हाल हुआ? बैंगलोर मुनाजरा देखा बैंगलोर का? क्या देखा? भाग गया ये अली जो था ना, उसके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा लेकर के घूम रहा है वो, उसकी बात मानी जाएगी? तो है डिग्री देखा जाता है। जिसको ये नहीं पता है कि अली के ऊपर शेर है या पेश है, इतना अभी तुम लोग का पूरी जिसको ये नहीं पता है कि अली के ऊपर शेर है या पेश है, अली उन पढ़ रहा है या अली उन पढ़ रहा है, उसको ये नहीं पता जाहिल को उसको आलिम बनाए बैठे हो। 3 जगह आया गलत पढ़ा है, जो मुफ्ती अख्तर है वो हमारे उसको वहाँ ये का नहीं है। पता कि इस्नाद होता है या इस्नाद होता है, इस्नाद होता है इस्नाद होता है, उसको ये नहीं पता जाहिल को उसको मुनाजिर बनाए बैठे हो। नहीं बच्चा पहले खिला रहे हो, वही तुम लोग का आदत है। जाहिल आदमी तुम लोग, जैसे जाहिल खुद हो वैसे तुम्हारा जाहिल आदमी है। तुम तो मुझसे बदतर है। चल अपने कारी अहमद हसन को लाइन पे ले, मेरी बात कर। लाइन पे क्या ले, तो तेरे जैसे हाँ तो लाइन पे ले, लाइन पे ले, मेरी आवाज सुन के लाइन पे ले, एक सवाल को जवाब दे नहीं पाते हो। लाइन पे ले, मैं आइडियो नहीं सुनता हूँ क्या? लाइन पे लेना। अभी तुमने उनका मतलब क्या बोलता है, एक बार लाइन पे तो ले। साजिद अशरफ से तुमने बात नहीं कर पाया तो कारी अहमद हसन से क्या बात करोगे? किससे? साजिद अशरफ से। अबे साजिद अशरफ की तो वो पिटाई की है, मैंने अभी रिकॉर्डिंग जाएगी सुनी है पूरा, तो साजिद ने काट के डाली है। कह रहे हो कि मैं साजिद अशरफ ने रिकॉर्डिंग काट के डाला, जब मैं डालूंगा ना तो पूरा सुनिए आराम से बैठ के। लेकिन तुम लोग का कोई उसने कुरान में झूठ बोला, उसने अल्लाह को मासूम बताया, जाहिल के बच्चे, गधे के बच्चे, उसने कुरान पे झूठ बोला। जब रिकॉर्डिंग डालूंगा तो सुनिए। अच्छी तरह जानते हो, एक जाहिल चल अपने साजिद को लाइन पे ले ले, मेरी आवाज सुन के ना भाई तो बोलिए। तुम्हारा देखा हूँ ना, ये अगर मगर आए साथ के भाग जाता है, झूठा इल्जाम लगा के। तुम्हारा वही अकीदा है कि क्या इनसे बहस किया जाए? क्या बात है? तुम क्या बात
ये नहीं पता कि उसूल में फर्ज कितने हैं, और ये बताइए ऐसे जाहिल के बैठे हैं मुनाजिर बना के, जो बैंक में मुनाजिर करके आया। अभी बंगलादेश में मुनाजरा हुआ ना, ये का पता नहीं कैसे जीत गए, अभी मुनाजरा नहीं हुआ। तो वो आलिम ही नहीं है, डिप्लोमा वाला। आलिम कैसा नहीं, आलिम कैसा चाहिए, आलिम कैसा चाहिए तुमको, वहाँ अर्थ से आलिम लाना पड़ेगा क्या? अबे तो पहले इसको आलिम तो बना। तुम लोग आलिम खुद नहीं हो, जाहिल जबात आदमी हो। हेलो तुम लोग जाहिल से बदतर हो, इसीलिए तुम लोग गुमराहगर हो। मैं कह रहा हूँ हेलो, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ अपने कारी अहमद हसन या साजिद में से किसी को ले ले अभी लाइन। तुम्हारी लैटरिन उतर जाएगी। तो ले लेना, जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि बड़े बड़े मुफ्ती का लैटरिन उतर जाता है, पेट के मूली को लाइन पे ले तो सही, मेरी आवाज गाड़ी गुप्ता देगा, बात तो करने आता ना, जब बात करेगा। मैंने कभी गाली नहीं बता, सबकी गाड़ फाड़ के रख दिया कारी। तो लगा लाइन पे ले, लाइन पे ले। ये मुफ्ती अख्तर क्या है, उसके आगे एकदम जीरो है। इसको लाइन पे क्या है, अल्लाह, इसको मंतिक के अलावा आता क्या है, इसको कुरान पढ़ना नहीं आता। कसम खुदा की ऐसे से जाहिल यही तुम आलिम बनाए बैठे हैं, रहबर बनाए। हुजूर ने फरमाया ना कि आखिरी जमाने में ऐसा होगा कि पैदवी करेंगे, ये वही जाहिल, जो हाथ छुपाएंगे वही जहन्नम जाएंगे। इसे यही बिना सरकार का है, तुमसे ना हो पाएगा भाई, तुमसे ना हो पाएगा। अपने आलिम को लेके आओ मेरे पास। तुम क्या बात करो, मुझसे एक जाहिल से नहीं बात कर सकते, एक जवाब नहीं दे पाते हो। आलिम को ले आओ, आलिम को ले आओ, कुछ जवाब तो दे दिया करे। अभी हदीसे सकलन के बारे में पूछा, तो उसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम क्या पढ़े हो? तुमको एक बात बताओ, हदीसे सकलैन का माना क्या होता है? क्या है ये हमें बताया। सकलैन का माना क्या होता है? सकलैन का माना होता है अली और अहले बैत। कहाँ लिखा है? तुम्हारे मुंह में लिखा है, और कहाँ लिखा है? जाहिल जाहिल जपाट कहीं का तुम्हें पता नहीं है। हदीस सकलैन अहले बैत की हदीस होती है, कहाँ लिखा है? अच्छा, अहले बैत से बहुत जगह लिखा है, तुम्हें पता ही नहीं है। हजरत अली से कितनी हदीसें आई? अरे चोर साले को हदीस दी है हजरत अली से। हजरत अली चोर हैं, हजरत अली से कितनी हदीसें आई हैं? चुराए हैं, ये सब गद्दार हैं। चलो बताओ, हजरत अबू बकर से कितनी हदीसें आई? गद्दार हो। हजरत हमें फदक पे बताइए, सुनिए, हमें फदक पे बताइए। ऐसी फदक पहले बोलना सिर्फ, आगे फदक बताइए ना। आगे फिदक होता है, फदक कहाँ से आया? फदक बोलो या फिदक बोलो, कहाँ से बोलो, कैसे बोलो? सीन काम में हमें ना बजाए ना, हम सीन काम में बहुत आलिम बोले, इससे बात तुम लोगों को मंतिक में जानता हूँ कि तुम लोग मंतिक में बजाते हो। सुन, अपने आलिम नहीं बताते, अपने आलिम को लाइन पे ले ले। यही कारनामा है। अच्छा, तो तेरा साकिब कहाँ पड़ा 12 साल? कहीं भी पड़ा हो, मेरा हक अली है, अली के अलावा कोई कायनात में हक है ही नहीं है। अच्छा, ना। अच्छा, मतलब तुम्हारा हक अली है ना? बस चलो, हजरत अली से बताओ नमाज का तरीका। चलो, क्या नमाज का तरीका? जल्दी बताओ। पहले तुम बात ही नहीं करते हो। कौन सी किताब में लिखा है? अभी मैं बता दूंगा, तुम मानोगे नहीं। जल्दी बताओ। तुम मानोगे ही नहीं यार, क्योंकि तुम्हारी नमाज ही अलग है। अली से अलग तुम्हारी नमाज है। तुम हाथ के पढ़ते हो, अली वाले अली से नमाज साबित करो। चलो, हजरत अली से ज़कात साबित करो, हजरत अली से रोज़ा साबित करो, हजरत अली से साज साबित करो। कैसे करते थे? जल्दी बताओ। तो कर दो सरकार से, जल्दी बताओ। आपको कुछ आता नहीं। अरे तो बताओ ना, तुमको आता, तुम बताओ ना। मैं बताऊँ? हजरत अली का नमाज हाथ खोल के है, हाथ खोल के से है, कहाँ लिखा? कुरान से पढ़ो ना, कहाँ बताओ। हजरत अली ने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ा, खोल के नमाज पढ़ा। कुरान की कौन सी आयत है? पढ़ो। बहुत से आयत है। तुम आज पूछ रहे हो, तुम्हें तो मालूम नहीं है। हमारा मुहताज आप बन गए। देखिए, सामने जाहिलों की जमात, और इसको कहते हैं राफ़ज़ी, नाफ़ज़ी, मौलवी। आज के नाम निहाद मौलाई और ऐसे खारजी पैदा हो गए हैं कि हुजूर ने फरमाया था आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे, आलिमों को छोड़ के जाहिलों की पैरवी करेंगे। अच्छा, राफ़ज़ी का माना क्या है? राफ़ज़ी का माना होता है जो सहाबा की शान में, अहले बैत की शान में बकवास और गुस्ताखी करे। अच्छा, सहाबा दीन है क्या? तुमने अभी अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर दी। अबे सुन पहले यार, सहाबा दीन है। मैं अहले बैत की शान में गुस्ताखी की कि नहीं की? मैं कह रहा हूँ सहाबा दीन है क्या? बिल्कुल, साबित करना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारे सहाबा दीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हजरत अली से कि मेरे बाद हजरत अबू बकर की पैरवी करना है।
हजरत अली से है, हदीस बुखारी शरीफ में है। कुछ ना, ये सब झूठी हदीस है, अच्छा, समझ रहे झूठी हैं ना? हदीस है। हाँ, ये हम चलो। मानते नहीं, सिर्फ हदीसे शाबाश। शकलैन, हदीसे किरतास। अच्छा, कौन सी सही हदीस है बताओ फिर? तुम क्या बताओगे भाई साहब, तुम्हारे अच्छा, पास की बात है ही नहीं। बागे फिदक का जो मामला है वो कौन सी हदीस में लिखा हुआ है बाबू? हाँ, कौन सी हदीस में लिखा है बागे फिदक का मामला? ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? तो जब किससे मैं बता पूछूं? दिया कि तुमसे मैं पढ़ा नहीं हूँ, किससे पूछूं? जाएगी जनाब, किससे पूछूं? तेरे कारी अहमद हसन को लाइन पे ले ले, उससे पूछ लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जाइए आप अल्लामा कारी यासीन अहमद कादरी को से ले पूछिए ले, ना, साजिद को ले ले, दुनिया साजिदुल राशिद को कादरी ऐसा से आलिम पूछिए जो ना, मेरी आवाज को सुन के भाग ना कादरी जाए, उसको हजरत ले ले से लाइन पे। पूछना, हमसे क्यों पूछ रहा है? तेरे बस की नहीं है बेटा, तुझसे नहीं हो पाया। जा तेरे जा बाप अपने की बाप कुछ को है ही लेके नहीं, आ जा। जब तुझे मालूम है ना। तो सामिन इकराम, आपने पूरी रिकॉर्डिंग को समाप्त फरमाया और आप फैसला खुद कीजिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये जो उट पटांग हरकतें राफजी मौलाई नाम निहाद कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ नाम निहाद अशरफी, कुछ नाम निहाद हशमती, कुछ नाम निहाद कादरी, कुछ नाम निहाद चरसी, जिसको चिश्ती नहीं चरसी कहा जाता है, जिसमें आपने साजिद से सुना कि उसने कामरान चरसी का नाम लिया। ये लोग ऐसे बलवाई हैं, ऐसे राफजी छुपे हुए हैं कि उन लोगों को पकड़ते हैं बेचारों को, इनको इल्म नहीं होता है। अब बताइए कि किसकी किस्मत पर रोया जाए और किसकी किस्मत पर हंसा जाए। ऐसे लोगों को बिल्कुल ये एक जद्दी बराबर भी फिक्र नहीं है अपने ईमान की, कि हम ऐसे के हाथ में अपना ईमान दे रहे हैं कि जो ना तो सनद याफ्ता आलिम है, ना जिनके पास कोई क्या कहते हैं सनद है। अब आप देख लीजिए बेंगलोर मुनाजरे में इस कितने जलीलो ख्वार हुए, ये कितने जलीलो ख्वार हुए। अब देखिए ये जो साजिद है, ये खुद अपने मुंह से कह रहा है मैं 12 साल बरेलवी में पढ़ा। चले ठीक है, पढ़ने के बाद राफजी बन गया, मौलाई में चला गया। चले ठीक है, तेरी किस्मत कि तू गुमराही में गया, चला गया। तो अब मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर कोई सनद याफ्ता आलिम है तो ले करके आओ ना भाई सामने। तुम ये जो तहरीरी झूठी तहरीरें बना करके मसलक आला हजरत के नाम पर लेटर पैड शाया करके, अल्लामा असद रज़ा साहब दावत बरकातु आलिया के नाम पर सिग्नेचर के साथ उल्टा सीधा तहरीर बना करके, ये क्या है कि ये नेट से निकाल करके नीचे का अलग, ऊपर का अलग, साइड का अलग, कैसे टाइपिंग किया ये जाने, इनका काम जाने। अच्छा, दूसरी चीज़ें मैं इनको ये चैलेंज भी कर चुका हूँ कि कोई भी बलवैया, कोई भी राफजी का बच्चा अगर हलाली हो तो इस तहरीर को शाया जो इन्होंने खुद की है सच साबित करके दिखा दे कि ये बरेली शरीफ से फतवा जारी हुआ। तो ये लोग क्या है, ये लोग छुपे हुए राफजी हैं, छुपे हुए मौलाई हैं। अपने नाम को मौलाई इसलिए कहा कि मौला अली के नाम पर पे चंदा इकट्ठा करना, लूट और खसोड़ करना, बेचारे भोले भाले लोगों को फंसाना कि हम मौला अली वाले हैं। हालांकि ये सब नाम निहाद मुसलमान हैं, इनमें से कोई भी हक परस्त पे नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इनके आलिमों को चैलेंज कीजिए फ़ोन करके, इनको ललकारिए। अगर ये हलाली के बच्चे हैं, अगर इनकी माँ एक बाप नेक है तो ये आए हमसे गुफ्तगू करें, ये भागे नहीं हमसे, गुफ्तगू करें। अगर ये हक पर है टाइम मुकर्रर करके बात करें, क्योंकि हमारे आलिमों के बीच में बैठने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। वो हमने बेंगलोर मुनाजरे में देख लिया, तुम्हारी माँ ने कोई ऐसा आलिम जना ही नहीं है हलाली, ठीक। तो ये इनकी हालत है। अब देखिए मुझे सख्त लहजा इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि इन्होंने मेरे मसलक की तरफ झूठ मंसूब किया, मेरे मसलक की तरफ गाली गलौज करने की कोशिश की, मेरे सहाबा इकराम की शान में बकवास करने की कोशिश की और बकवास कर रहे हैं। तो जितने भोले भाले जो लोग इनको हक समझते हैं ना, मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ, ये इनको लेके आए हमसे बात कराने के लिए, उसूल से बात कराएं, तरीके से बात कराएं, लेकिन इनकी औकात नहीं है। लेकिन पता नहीं ये बेचारे लोग किस गुमान में इनके पीछे चलते हैं, कैसे चलते हैं, हमें ये चीज़ का गुमान ही नहीं है, समझ में नहीं आती। अब चलें देख लीजिए, आपने रिकॉर्डिंग पूरी सुन ली, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। बाकी आपके ताल्लुक़ से जो भी हमारे मामलात हैं वो आप मेरे पर्सनल में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे अहबाब दोस्त मुझसे बातचीत कर सकते हैं कि कहाँ तक इलाज मुकम्मल हुआ, कहाँ तक चला, अभी क्या मावेन परेशानी है, इस बच्ची के ताल्लुक़ से क्या अभी खर्चाजात हैं, वो मुझसे आकर के ले सकते हैं। इस ताल्लुक़ से ग्रुप भी बनाया है, जो भाई मुझे पास आते हैं, मुझसे मिलते हैं, जुलते हैं, जो ग्रुप में लाइव वीडियो कॉलिंग करते हैं, वो सारी हालात को जानते हैं, देखते हैं, वो सब जानते हैं। तो अगर कोई भाई है
تو وہ آ کے بات کر سکتا ہے, جڑ سکتا ہے. باقی اسکینر آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے. جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ دیجئے, اور اللہ گواہ ہے کہ اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے اس بچی کے تعلق میں علاج میں خرچ ہو رہا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب یہ بچی صحت یاب ہو جائے گی تو جب ہم اس کو مدرسے میں ڈالیں گے, جب یہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرے گی تو اس کی بھی ہم آپ کو وضاحت کریں گے. لیکن ابھی دعا کیجیے کہ یہ بچی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے, اچھی ہو جائے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.